So class 11 student, in accountancy, question number 2 I am explaining with solution. The question is Ram commenced business with cash. Okay beta, date is given 1st January, year is 2017. 30,000 amount is given. Understood? Basic general entries are given here. So solution is there. Cash account debit to capital account 30,000 debit credit side already we have mentioned. Heading है हमारी general in the books of Mr. Ram. Date particular LF and debit credit है ना. So cash account debit 1st January, year we will mention only once. हमको year जो है 2017 एक ही बार लिखना है और जनवरी हम डेट ऐसे मेंशन कर सकते हैं आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, नहीं with the every transaction. Okay, so cash account debit to capital account being business started with cash 30,000. Second है बेटा, second transaction we will see paid into bank. It means deposited cash into bank. तो bank account debit to cash account because cash we are depositing into bank, मतलब cash is reducing in that cash. So that entry will pass, amount we will write in the both the side. The third entry is purchase goods on 3rd January. तो purchase account debit to cash account, the entry will pass being cash purchase 1500. Next entry is on the 7th of January, withdraw from bank. तो cash account debit to bank. Understood beta? Cash account is real account, that's and cash is increasing, so real account formula will follow and the personal account formula is follow, real and personal. Understood beta? 3000. हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हरी को सेल किया 1000 रुपीज़ का, क्रेडिट सेल है 10 जनवरी को, तो क्रेडिट सेल्स में पर्सनल अकाउंट विल बी डेबिटेड and sales account will be credited because sales is revenue means sales is income for the business, so nominal account rule follow here. On 15th of January, purchase goods from Shyam. So purchase account debit to Shyam's account. Shyam's is the personal account and purchase is the nominal account. Understood beta? For nominal and personal account rule follow here. So purchase will be debited and Shyam's will be credited. So next entry will be there, cash sales on 20 January. So the entry will be there, cash account debit to sales account being cash sales. ठीक है, नगद माल बेचा. So what is the CF and VF that I want to explain in this format? Exactly my focus is on that. So first if our page is over, यदि हमारे जर्नल एंट्री में एक पेज ओवर हो गया है तो हम उस पेज की टोटल करेंगे. सबसे पहले इस पेज की दोनों साइड की टोटल, जब सेम अमाउंट हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं तो टोटल भी सेम है. सेम अमाउंट विल कम इन डेबिट एंड सेम अमाउंट विल कम इन क्रेडिट. दोनों साइड बराबर अमाउंट आएगा तो हम इससे लिखेंगे टोटल ऑफ CF, दैट इज कैरीड फॉरवर्ड. टोटल ऑफ कैरी फॉरवर्ड कितनी है? कैरी फॉरवर्ड टोटल 61,000 सेम, दोनों कॉलम की टोटल हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड 61,000 करेंगे. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. नेक्स्ट पेज क्या है बेटा? टोटल ऑफ VF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड. हमने इसका मतलब है कि भाई आगे कैरी फॉरवर्ड मतलब जो टोटल है इसको आगे ले जाया गया, कैरी फॉरवर्ड किया. बैक फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब यहाँ पीछे से जो हमारे पेज का टोटल है वो यहाँ पर लाया गया. तो यहाँ की जो टोटल हमें दिख रही है, टोटल हमारी 61,000 आ रही है दोनों साइड की, तो सेम टोटल हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पेज पे. 61,000. अंडरस्टूड बेटा? 61,000 दोनों पेज पे आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डेट पर्टिकुलर सब ऑलरेडी मेंशन है. नेक्स्ट पेज हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर इन टोटल के बाद कोई लाइन नहीं खींचना है, यही टोटल कंटिन्यू में आपकी प्लस हो जाएगी. नेक्स्ट है बेटा श्याम्स अकाउंट. हमने श्याम को पेमेंट किया है. एंट्रीज देख लेते हैं एक बार. पेड टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड. सो श्याम को अमाउंट पेड किया मतलब श्याम इज द रिसीवर, दैट्स वाई डेबिटेड. पर्सनल अकाउंट रूल. टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इनकम फॉर अस, दैट्स वाई वी क्रेडिट 25 डिस्काउंट, 1475 be paid and total amount is 1500. Understood? Rent paid,
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कॉमन एंट्री है। दैट बेटा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पर। नॉमिनल अकाउंट क्या है, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डेबिट। रेंट इज एक्सपेंसेस, दैट्स वाई डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 500। सैलरी इज एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर लास्ट ट्रांजेक्शन्स को देखना। लास्ट ट्रांजेक्शन की डेट है यहाँ पर 31st को गुड्स कॉस्ट ₹200 एंड सेलिंग प्राइस 250 टेकन बाय द प्रोप्राइटर। बेटा जो गुड्स है वो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, लेकिन उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 250 रुपये है और कॉस्ट उसकी 200 है। तो बेटा हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कौन सी प्राइस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो एंट्री क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा गुड्स कम हो रहा है बिजनेस से, अंडरस्टूड। गुड्स कम हो रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस आएगा। और बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर द बिजनेसमैन, बीइंग गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रोप्राइटर। ऐसा हम नरेशन में यहाँ पर मेंशन चाहे तो आगे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। 200 यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। अब यहाँ पर फाइनल टोटल आ जाएगी जनरल की। ओके बेटा, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड according to my book. Okay, now the question is over. All the transaction we have done from sequentially. All the transaction we have done. Okay.